Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to continue chapter number 5, The Summit Within, from class 8. I hope you will be listening to me very carefully and will be getting valuable points from each paragraph that will be coming in front of you. So now let's get ready to continue. And you go on. Your companion keeps up with you, just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then, without first being aware of it, you are at the summit. So here HPS Ahluwalia speaks while climbing the summit, and here he is talking about the climbers. यहाँ पर HPS Ahluwalia बताते हैं कि जब तुम मीन्स वंस यू कीप गोइंग अहेड, जब तुम आगे बढ़ते जाते हो और तुम्हारा जो दोस्त है वो भी तुम्हारे साथ ही रहता है, तुम 50 फीट जाते हो या फिर 100 फीट जाते हो या उससे कुछ और ज़्यादा जाते हो, तो मीन्स यू कीप गोइंग अहेड, समथिंग दैट मोटिवेट्स यू फॉर गोइंग अहेड. यू आस्क योर सेल्फ, तुम खुद से बातें करते हो, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है, ये कब ख़त्म होगा. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, मीन्स यू कीप लुकिंग. समटाइम्स यू लुक एट योर फ्रेंड एंड समटाइम्स ही लुक्स एट यू. तो आप एक दूसरे को देखते रहते हैं, मीन्स सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन यू कीप गेटिंग जस्ट टू गो अहेड. You draw inspiration from each other. This is something that I have said to you, means you keep getting motivational inspiration from each other. And then और उसके बाद without first being aware of it, you are at the summit. और तुम्हें पता भी नहीं चलता, means once you keep going ahead, right? Something motivates you, go ahead, something encourages you just to reach the summit of the Mount Everest. और एक टाइम ऐसा आता है, means it is without first being aware of it, तुम्हें पता भी नहीं चलता है, and finally you reach the summit of the Mount Everest, और तुम आखिरकार पहुंच ही जाते हो. Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. And after reaching there, once you start looking around yourself, जब आप देखना शुरू करते हैं तो आप खुद से बात करते हो. You tell yourself, तुम खुद को बताते हो, it was worthwhile, means you have success, means you have succeeded, you have achieved something, you are successful, means your journey has been successful. Other silvery peaks appear through the clouds, and by standing over there you can see other silvery peaks. बाकी के जब आप समिट पर खड़े होते हैं और बाकी की जो चोटियां हैं वो भी आप आसानी से देख सकते हैं. You can easily see them through the clouds, बादलों के बीच में से. If you are lucky, the sun may be on them. और अगर आप लकी हैं तो आप सूरज को भी देख सकते हैं उन बादलों के ऊपर, उन चट्टानों के ऊपर. I hope you understand so far. Now let us move ahead. The surrounding peaks look like a jeweled
necklace around the neck of your summit. जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, where you have been standing, that means on the summit of Mount Everest. Once you start looking around yourself and see the rest of the peaks, right, it seems like a jeweled नेकलेस. वो एक नेकलेस की तरह लगती है. बाकी की जितनी भी जो चोटियां हैं वो ऐसी लगती है कि जैसे हिमालय के गले का हार लगती है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस. और जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो वैली स्लोपिंग मतलब बहुत नीचे की जो घाटियां हैं जो स्लोप करती हुई, मतलब एक तरीके से झुकी हुई. इनटू द डिस्टेंस, काफ़ी गहराई में आपको ये चीज़ नज़र आती है. मतलब काफ़ी गहरी घाटियां झुकी हुई आपको नज़र आती है. आई शुड से ढलान वाली घाटियां जो होती है. इट इज एन ennobling, enriching experience to just look down from the summit of the mountain. So once you are standing on the summit of the mountain, so how does it seem and how it makes you feel? It is an ennobling. Ennobling means it makes you feel pride. आपको एक मीन्स प्राइड आप महसूस करते हैं, एक सम्मान, एक गौरव आप महसूस करते हैं. Enriching experience means enriching in the sense कि आपने you have achieved something, you have acquired something, something Herculeous, something Herculean. Just to look down from the summit. जब आप नीचे की तरफ देखते हैं, जब आप once you look down, so means you feel that you have acquired something. Let us move ahead. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. तुम नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकते हो. And here is a new word. Obeisance means, I should say about it कि तुम झुककर अपने प्रभु को, अपने गुरु को, अपने भगवान को आप प्रणाम करते हो. I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of goddess Durga. Pihu Dorji left a relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn in the snow. तो मैं और मेरे कुछ दोस्त वहाँ पर एक सिंबल छोड़ते हैं, जैसे कि मीन्स HPS अहलुवालिया स्पीक्स कि उन्होंने एवरेस्ट पर जाकर, समिट पर पहुंचकर उन्होंने गुरु नानक जी की एक तस्वीर को वहाँ पर रख दिया. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ, और रावत ने माँ दुर्गा की एक तस्वीर को वहाँ पर रखा. पीहू डोरजी अनदर क्लाइंबर, उन्होंने क्या किया, एक निशानी छोड़ दी. रेलिक मीन्स एक निशानी बुद्धा की. एंड एडमंड हिलैरी ऑल्सो अनदर क्लाइंबर, उन्होंने क्या किया कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका जो एक सिंबल होता है, एंड वो स्नो पर उन्होंने उसको आई शुड से स्टिक कर दिया, डिग कर दिया. आई मीन आई होप यू अंडरस्टैंड. सो एडमंड हिलरी ने क्या किया, जो क्रिश्चियन लोगों का जो एक सिंबल होता है, एंड यू वुड हैव सीन क्रिश्चियन पीपल, they just put on some kind of symbol in their necks. So now let us move ahead. तो उन्होंने उसको उसमें स्टिक कर दिया. These are not symbols of conquest.
कि ये कोई जीत की निशानी नहीं है कि हम कुछ जीत चुके हैं, वी हैव कंकर्ड समथिंग, नो, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट ओनली, बट ऑफ रेवरेंस, एक तरह का सम्मान है, इट इज़ द मैटर ऑफ प्राइड, इट इज़ द मैटर ऑफ ऑनर। अहलूवालिया स्पीक्स, इट इज़ द मैटर ऑफ ऑनर। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। ये जो अनुभव होता है, वंस यू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, इट चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये आपको पूरी तरीके से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, इट्स विद इन योर सेल्फ। इसके अलावा बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर समिट दैट्स विद इन योर सेल्फ। एक इस चोटी के अलावा आपके एक चोटी और भी होती है जो आपके खुद के अंदर होती है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, तुम्हारे दिमाग में होती है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर इंसान के अंदर होती है और वो हमेशा इसको अपने साथ में रखता है। एक मन की चोटी होती है, एक मन का माउंटेन होता है जो इंसान के अंदर होता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ fuller knowledge to himself, and everybody has got to acquire this, everybody has got to win this। हर इंसान को एक दिन इसे जीतना होता है, यहाँ पर पहुँचना होता है, इसकी ऊंचाई पर पहुँचना होता है। It is fearful and unscalable। Unscalable means difficult, incapable, कि ये बहुत, I know that it is very fearful, बड़ा डरावना होता है, and it is really it's really very dangerous, and it's very difficult and incapable। It cannot be climbed by anyone else। इसे कोई और दूसरा इंसान अचीव नहीं कर सकता, क्लाइंब नहीं कर सकता। You are the only one, you yourself have got to do it। The physical act of climbing टू द समिट ऑफ द माउंटेन, जो एक फिजिकल, एक शारीरिक मेहनत जो होती है, रीचिंग समिट ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट टू द माउंटेन, कि एक फिजिकल हम जो लेबर करते हैं समिट पर पहुंचने के लिए, आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। इट इज इक्वलेंट टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। ये बिल्कुल बराबर होती है। जो हमारे मन के अंदर एक चोटी होती है, हमें उस पर पहुंचना होता है, उस पर विजय हासिल करनी होती है। सो दैट इज इक्वलेंट टू दैट। रीचिंग द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज इक्वल टू रीचिंग द माउंटेन विद इन, जो हमारे खुद के अंदर होता है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम। दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं। Whether the mountain you climb is physical or emotional or spiritual, whether the mountain you climb, वो चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, all they have got the same result, उनका रिजल्ट सेम होता है। The climb, I hope you understand, my dear students। Let's continue। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। ये एक ऐसी चढ़ाई होती है, ये पक्का आपको बदल देती है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। इट गिव्स यू सो मच रिलेटेड टू वर्ल्ड, यूनिवर्स एंड अबाउट योर सेल्फ एज वेल। तुम्हें खुद को खुद से मिलाती है। आई वेंचर टू थिंक that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals। मैं हिम्मत करता हूँ और सोचता हूँ कि जो अनुभव मेरा रहा है एज एन एवरेस्टर, उसने मुझे प्रोवाइड किया है, एक ऐसी इंस्पिरेशन दी है ताकि मैं मेरी ज़िंदगी की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, हियर इज़ एन न्यू वर्ड, ऑर्डील्स मतलब बेटा पेनफुल एक्सपीरियंसेस, right? I have got such experience that always boosts me up, that encourages me to face life's ordeals।
कि ज़िंदगी के जितने भी पेनफुल एक्सपीरियंस हैं आई कैन ईजिली फेस दैम, मैं उनको आसानी से फेस कर सकता हूँ. रेजोल्यूटली means with determination or firmness, means I can face my all the painful experiences with determination. Climbing the mountain was a worthwhile experience. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा माउंटेन पर जाने का, इट वॉज सक्सेसफुल, वो बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा. द कन्क्वेस्ट ऑफ द इटर्नल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल. तो हमारे अंदर जो चोटी होती है, मन की जो चोटी होती है, वो बिल्कुल इक्वलेंट होती है क्लाइंबिंग रीचिंग द समिट ऑफ द माउंटेन, उसके इक्वलेंट होती है. द इटर्नल समिट्स आर द internal summits are perhaps higher than Everest. In the last but not the least, HPS Ahluwalia speaks that maybe इंटरनल समिट्स आर हायर देन, हमारे मन की जो चोटी होती है उस पर पहुंचना वो ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, वो ज़्यादा ऊंची हो सकती है देन क्लाइंबिंग द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट he completes his experience which he was sharing with us. So I hope you must have understood all the valuable points. Thank you very much.